wonderful time, O Lord, which thou hast granted unto thy children, O Lord, once again for us to come into thy presence, O Lord. It's a privilege, O Lord, for each and every one of us, O Lord, to be seated at thy feet, O Lord. O Lord, what a great thing it is for us, O Lord. We did not have that worthiness. We did not have this. We did not have this opportunity, O Lord, in the past, but it was the work of our Lord and Savior Jesus Christ, which enables us, which leads us to come and stand before Thee, O Lord. We thank the Lord for that great work of redemption, which was carried out for each and every one of us, O Lord, on that cross of Calvary. O Lord, it is Thy blood which draws us near, O Lord. Even this evening, O Lord, Thou hast enabled all Thy children, O Lord, from different places of this country and and from Rajkot also to join along, O Lord. O Lord, we are here to praise Thee, worship Thee, and to hear from Thy word, O Lord, which Thy servant has to speak unto us this day, O Lord. We ask of Thee, O Lord, that Thou may empower him, O Lord, grant him much strength, O Lord, that Thy words may be put in his mouth, that we, the hearers, might be enriched, O Lord. We, the hearers, might correct our lives, O Lord, through Thy word this evening. O Lord, fill us and strengthen us, O Lord, with Thy word this evening. We ask of Thee. Especially, we pray for Uncle Stephen Cherian that Thou may strengthen him, O Lord, and keep him. O Lord, grant him much grace and strength. We also pray for the dear brother who will be guiding us by singing, O Lord. O Lord, help him also. Grant him much grace and strength. O Lord, we also pray, O Lord, for all Thy children, O Lord, who are on their way and who through various means are trying to get connected, O Lord, to the meeting, that Thou may help them, O Lord, that they may also hear Thy word and be blessed, O Lord, this evening. We commit them before Thy throne of grace. We also pray, O Lord, for those who are hearing Thy word for the first time. O Lord, let Thy word bring a change in their lives, O Lord. Let their the need by which they have joined the meeting may be met, O Lord. We pray for these hearers also, Lord, committing all these matters, O Lord, before Thy throne of grace. We especially pray, O Lord, that the connection might remain strong and good, O Lord, that there may be no disturbance, that everything may go on smoothly, O Lord. Lord, committing all these things at Thy feet, we ask this prayer, O Lord, in the sweet and worthiest name of our Lord and Savior, Jesus Christ, we pray. Amen.
प्रभु का कर धन्यवाद, प्रभु का कर धन्यवाद है मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद। भलाइयों से तृप्त वो करता, भलाइयों से तृप्त वो जवानी में शक्ति वो देता, तेरी जवानी में शक्ति वो देता। प्रभु का कर धन्यवाद है मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद, प्रभु का कर धन्यवाद है मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद। अपने संतानों पर करता है वो दया, अपने संतानों पर करता है वो दया, भक्तों को अपने प्रेम वो करता, भक्तों को अपने प्रेम वो करता। प्रभु का कर धन्यवाद है मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद, प्रभु का कर धन्यवाद है मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद। घास के समान है हमारा ये जीवन, घास के समान है हमारा ये जीवन,
far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. The old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left his glory above to bear it to dark Calvary. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the
Savior art thou. If ever I love thee, my Jesus, 'tis now. I love thee because thou hast first loved me, and purchased my pardon on Calvary's tree. I love thee for wearing the thorns on thy brow. If ever I love thee, my Jesus, 'tis now. Love thee in life, I would love thee in death, and praise thee as long as thou lendest me breath. I'll sing when the death dew lies cold on my brow. If ever I love thee, my Jesus, 'tis now. Mansions of glory in endless delight, I'll ever adore thee in heaven so bright. I'll sing with a glittering crown on my brow. If ever I love thee, my Jesus, 'tis now. Thank you. बहुत धन्यवाद ब्रदर एरिक, वो सुंदर और मधुर गीत हमारे सामने गाने के लिए। आज हमारे बीच में अंकल स्टीफन चेरियान है जोधपुर से, जो परमेश्वर के वचन से हमें सुनाएंगे आज के शाम के लिए। उसके पहले अंकल वचन सुनाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ब्रदर अमृत पाल को प्रार्थना कर आगे बढ़े। ब्रदर अमृत पाल। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, आप जो स्वर्ग में अति पवित्र और अति स्तुति के योग्य उस सिंहासन पर विराजमान है प्रभु, हम आपकी स्तुति, तारीफ और महिमा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस आज की संध्या काल के समय के लिए जो आपने अपने अनुग्रह से हमें दिया है कि कुछ समय प्रभु इस जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपके सन्मुख आपके वचनों को सीखने के लिए व्यतीत कर सकें। आपकी ओर से ये प्रबंध हमें प्रभु दिया गया है, इस विश्वास को लेकर हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका पवित्र आत्मा जो हमें सत्य के मार्ग में अगुवाई करता है प्रभु, आपने हमें सहायक के रूप में दिया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके दास और हमारे प्रिय अंकल स्टीफन चेरियन के लिए
प्रभु जी जो आज आपके वचन में से हमसे बांटेंगे प्रभु, प्रार्थना करते हैं आप अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उन्हें भरपूर करें, उन वचनों को जो हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति के लिए आवश्यक है प्रभु, और उन वचनों को जो प्रभु आपके सत्यता और आपकी महिमा को प्रकट करते हैं, आप अपने दास के द्वारा हम तक पहुंचाएं प्रभु। विनती और प्रार्थना यह है कि प्रभु जितने भी जन पार्टिसिपेट करने वाले हैं प्रभु, हर एक के हृदय आपकी ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा छिद जाएं प्रभु, आपका वचन कार्य करे, ऐसी हम विनती और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस राजकोट ब्रदरन असेंबली के इस जूम पर कार्य करने वाले सभी भाइयों और बहनों के लिए प्रभु, आपके सेवक गणों को आपका अनुग्रह दे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं हमारे प्रिय भाई एबिसन के लिए प्रभु, जिन्होंने मधुर उस संगीत के द्वारा आपकी महिमा को किया, आप उन्हें भी अनुग्रह दे। प्रार्थना करते हैं इस सभा को शुरू से अंत तक आपके बलवंत हाथों में सौंपते हुए बहुत ही धन्यवाद के साथ इस विनती प्रार्थना को शीघ्र आने वाले मुक्ति के दाता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कर हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन। I would like to call upon Uncle Stephen Cherian to bring God's word for us this evening. Uncle Stephen Cherian. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर पवित्र नाम में सभी को जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं इस सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने मुझे इनायत की कि इस प्रकार आपके मध्य में आकर आपसे संगति सहभागिता कर सकूं और परमेश्वर के वचन की खिदमत इस प्रकार कर सकूं। मैं परमेश्वर का तहे दिल से आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं। साथ साथ राजकोट ब्रदरन असेंबली का भी मैं आभारी हूं आपके प्रेम भरे निमंत्रण के लिए कि इस प्रकार इस सभा में आकर प्रभु के वचन की खिदमत आपके मध्य में कर सकूं। मैं आपकी कलीसिया का बेहद आभारी हूं और विशेष तौर से परमेश्वर के खादिम भाई डेविड पी आइजक का, आपने मुझसे संपर्क किया, आपने मुझे निमंत्रण दिया, आपका भी मैं आभारी हूं। और मेरी यही प्रार्थना है प्रभु आपको, आपके परिवार को और वहां की कलीसिया को बहुतायत से आशीष दे और प्रभु अपने नाम की महिमा के लिए आप सभी को इस्तेमाल करें। थोड़ी देर आज शाम को परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे। प्रार्थना पूर्वक प्रभु के वचन के सन्मुख हम ठहरे रहें ताकि प्रभु का वचन सुनकर उसका आज्ञा पालन करके अपने आत्मिक जीवन में हम अनुग्रह आशीष प्रभु से प्राप्त कर सकें। आज शाम के मनन के लिए एक छोटे से पद पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस पद की बात परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस ने कहा है। प्रेरित पौलुस का जीवन मेरे व्यक्तिगत आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही प्रेरणादायक और उत्साहजनक रहा है। प्रेरित पौलुस का जीवन जब भी हम अध्ययन करते हैं बहुत उत्तेजित होते हैं और इतनी आशीष पाते हैं जब प्रभु के दास का जीवन अध्ययन करके उस प्रकार हम जीवन बिताते हैं। वास्तव में प्रभु से अनुग्रह आशीष हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि नए नियम में हम देखते हैं बहुत प्रभु के दास हैं, लेकिन केवल प्रेरित पौलुस ने ही कहा है तुम मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। और किसी ने इस प्रकार का दावा नहीं किया। पौलुस ने कहा जैसे मैं चलता हूं वैसे तुम चलो क्योंकि मैं मसीह यीशु के पीछे पीछे चलता हूं। वास्तव में प्रेरित पौलुस का जीवन हम सबके लिए बड़े आदर्श और नमूने का जीवन है। आज की शाम प्रेरित पौलुस के अंतिम पत्री में से एक छोटा पद पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जी हां, हम निकालें
दूसरा तिमुथियुस की पत्री उसका पहला अध्याय, 2 Timothy chapter 1 verse 12। दूसरा तिमुथियुस पहला अध्याय और उसका 12 पद। यहां इस प्रकार लिखा है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं और लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। प्रेरित पौलुस इस अंतिम पत्री में, जो 4 अध्याय इस पत्री में हम पाते हैं, बहुत सारी बातें व्यक्तिगत जीवन से संबंधित प्रेरित पौलुस कहता है। और इस पद में, 12वें पद में जो हमने पढ़ा, यहां पर प्रेरित पौलुस अपने जीवन के संबंध में 3 प्रमुख बातें बताता है। उन 3 बातों पर आपका ध्यान संक्षिप्त रीति से मैं चाहता हूं, और इस दरमियान हम अपने आप के जीवन को जांचें, क्या ये 3 सद्गुण मेरे जीवन में है या नहीं। यदि है तो परमेश्वर का हम शुक्रिया अदा करें, और यदि नहीं है प्रभु से अनुग्रह मांगे, प्रभु जी मुझे भी प्रेरित पौलुस के समान इन सद्गुणों में आप आगे बढ़ाइए। 3 बातें प्रेरित पौलुस दूसरा तिमुथियुस 1 अध्याय 12वें पद में कहता है। पहली बात जो पौलुस कहता है वो है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं। पहली बात पौलुस कह रहा है, मैं दुखों को उठाता हूं, मैं दुख सहता हूं। कितनी बड़ी बात है। आज अनेक लोग मसीहियत के बारे में सिखाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे आप आइए, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन ये नहीं सिखाता। परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से हमारे जीवन में दुख दर्द आते हैं, लेकिन उस दुख दर्द के बीच में हमारा प्रभु हमें अनुग्रह देता है कि हम उन्हें सह सके। प्रेरित पौलुस यही कहते हैं, मैं इन दुखों को उठाता हूं। प्रेरित पौलुस जेल में है। जेल में बैठकर दुख उठाने के लिए उसे कोई मलाल नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, वो खुश है। वो कहता है, मैं सुसमाचार के कारण कैदी हूं। 8वें पद में वो कहता है, मैं सुसमाचार के कारण दुख उठाता हूं, इसलिए तू भी तिमुथियुस मेरे साथ दुख उठा। कितनी बड़ी बात है। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं दुख उठाता हूं, मैं प्रभु के सुसमाचार के कारण, प्रभु की सेवकाई के कारण मैं दुख उठाता। ये प्रेरित पौलुस की अंतिम पत्री है। अपने मौत का इंतजार कर रहा है, और जीवन भर पौलुस ने दुख उठाया है। जीवन भर दुख उठाया। ऐसा क्यों हुआ? प्रेरित पौलुस एक महान परमेश्वर का दास है, प्रभु के लिए बड़ी बड़ी सेवकाई की, लेकिन दुखों के मध्य में प्रभु की सेवा की। पौलुस के दुखों का वर्णन हम 2 कुरिन्थियों 11वें अध्याय में पढ़ते हैं। समय नहीं है, आप घर पे बाद में इसे पढ़िएगा। 2 कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय 23 पद से लेकर 33 पद तक प्रेरित पौलुस अपने दुखों का एक छोटा सा वर्णन वहां पर करते हैं। पौलुस कहते हैं, कितने कितने दुखों से मैंने प्रभु की सेवा की। और अभी प्रेरित पौलुस अंतिम पड़ाव में, अपने जीवन के अंतिम पलों में है, कारागृह में है, जेल में है। किसी भी वक्त फांसी की सजा हो सकती है, किसी भी वक्त सरकलम किया जा सकता है। जिंदगी के अंतिम पड़ाव में प्रेरित पौलुस है, और अंतिम पड़ाव में बैठकर पौलुस क्या कर रहा है? मसीह यीशु के लिए जेल में दुख सह रहा है। मुझे नहीं मालूम आपने
गौर किया है या नहीं? आमतौर पर जब लोग गवाही देते हैं, वे कहते हैं, जब मैंने प्रभु की सेवा की, शुरू के दिनों में बहुत दुख दर्द सहा, प्रभु के लिए बहुत कष्ट और दुख सहा, बहुत दिनों में मैं भूखा रहा, प्यासा रहा, बहुत कठिनाई और कष्टों के मध्य से मैं होकर गुजरा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, अभी प्रभु ने मुझे बहुत अच्छे स्थान में पहुंचाया है, अभी मुझे बहुत आशीषें दी है, बहुत बरकत दी है, सब कुछ, अभी कष्ट दर्द सब दूर हो गया है, अब बस बरकत ही बरकत। पौलुस का क्या हाल है? पौलुस ऐसा नहीं कहता। जीवन का अंतिम पड़ाव है। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, वह तीमुथियुस को लिखता है, तीमुथियुस तू शीघ्र मेरे पास आना, और मुझे यहां पर थोड़े ही दिन हैं मेरे बाकी, तू जल्दी से आना ताकि हम मिल सके। और ट्रेडिशन, कलीसिया का इतिहास हमें बताता है, तीमुथियुस के आने में कदाचित देर हो गई, आने से पहले प्रेरित पौलुस का सिर कलम कर दिया गया। मतलब अंतिम पल तक, अंतिम दिन तक प्रेरित पौलुस ने मसीह के लिए कष्ट और दुख सहकर प्रभु की सेवा की। अजीज विश्वासियों, हम अपने आप के जीवन को जांचे परखें। क्या हम प्रभु के लिए कष्ट और दुख सहने के लिए तैयार हैं? क्या हम प्रभु के लिए कुछ कष्ट और दुख सहते हैं? जरा सी मुसीबत, जरा सा तकलीफ जब जीवन में आता है, क्या हम प्रभु पर अविश्वास नहीं करते? क्या हम प्रभु को कोसते नहीं हैं? क्या हम प्रभु से सवाल नहीं पूछते हैं? क्या हम प्रभु को भला बुरा नहीं कहते हैं? हम अपने आप के जीवन को जांचे परखें। हमेशा इस बात को याद रखें, मसीही जीवन दुख दर्द का जीवन है। इसलिए तो एक गीतकार ने गाया है, यीशु नाम को अपना कहना जैसे कांटों की राह पर चलना। आसान नहीं है ये राह, कठिनाई भरी डगर है, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, इस दुनिया में तुम्हें कष्ट और दर्द दुख होंगे, लेकिन हियाव बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, मैं तुम्हारे साथ हूं। मसीही जीवन में कष्ट और दुख आते हैं। मैं जल्दी से आपको बताना चाहता हूं, मसीह जीवन में ये कष्ट और दुख क्यों आते हैं। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु ने संसार को जीत लिया है, प्रभु सारे कष्ट और दुख से बढ़कर है। प्रभु चाहे तो सारे कष्ट और दुख हमारे जीवन से हटा सकते हैं, फिर भी हमारे जीवन में कष्ट और दुख क्यों आते हैं? एक विश्वासी के जीवन में कठिनाई, मुसीबत, कष्ट क्यों आते हैं? अनेक कारण हैं, 3-4 प्रमुख कारण जल्दी से मैं बताना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 29 पद। विश्वासी के जीवन में कष्ट और दुख क्यों आते हैं? फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 29 पद लिखा है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। प्रेरित पौलुस का पत्री है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, मसीह के कारण तुम पर अनुग्रह हुआ। क्यों? ना केवल उसके नाम पर विश्वास करो, लेकिन अनुग्रह इसलिए हुआ कि उसके नाम से दुख भी उठाओ। मसीही जीवन में प्रभु का अनुग्रह, मसीह के जीवन में प्रभु की आशीष ही हमें इसलिए प्राप्त होती है कि हम प्रभु के लिए दुख उठाएं, केवल उसके नाम पर विश्वास करके आशीष पाने के लिए नहीं, उसके नाम पर विश्वास करने के साथ साथ प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए प्रभु का अनुग्रह, मसीह का अनुग्रह हम पर हुआ। क्या हम प्रभु के लिए दुख उठाते हैं? प्रभु पर जब हम विश्वास करते हैं, प्रभु अनुग्रह देते हैं, आशीष देते हैं, सहायता मदद करते हैं, लेकिन उस पैकेज के अंदर दुख, कष्ट, मुसीबत, बदनामी, कठिनाई, कष्ट और दुख भी उस पैकेज के अंदर हैं। इसलिए प्रभु हम पर अनुग्रह करते हैं। हम अपने आप को जांचे परखें,
क्या हम प्रभु के लिए दुख सहते हैं? प्रभु का अनुग्रह हम पर इसलिए हुआ कि हम ना केवल उस पर विश्वास करें, लेकिन उसके लिए कष्ट और दुख भी सहें। एक और कारण क्यों विश्वासी के जीवन में कष्ट और दुख आते हैं, हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119 और उसका 71 पद। भजन 119 उसका 71 पद। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। यहां पर भजन का लेखक कहता है, मुझे मेरे जीवन में जो कष्ट और दुख हुआ वह मेरे लिए अच्छा हुआ, भला हुआ। क्या भला है? उसमें भलाई क्या है? उसमें भलाई यह है कि मैं तेरे विधियों को, मैं तेरे वचन को सीख सकूं। जी हां अजीज विश्वास, प्रभु का वचन जो कष्ट और दुख में हम सीखते हैं, कदाचित हमारे सुख के समय में हम शायद उतना सीख नहीं पाते। हमारे दुखों के पलों में, हमारे तकलीफ के मध्य में, हमारे आंसुओं के मध्य में हम जितना प्रभु का वचन सीखते हैं, उतना शायद हमारे अच्छे समय में, हमारे सुख के समय में हम नहीं सीख पाते। तो विश्वासी के जीवन में कष्ट और दुख क्यों होते हैं? विश्वासी के जीवन में कष्ट और दुख इसलिए होते हैं ताकि विश्वासी जो है हम परमेश्वर के वचन को सीख सकें, परमेश्वर के वचन को और गहराई से हम सीख सकें, समझ सकें। इसलिए कष्ट और दुख जीवन में आते। तीसरा एक और कारण, परमेश्वर के लोगों को, विश्वासियों को कष्ट और दुख क्यों होता है, हम पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक उसका 42 अध्याय, आखिरी अध्याय। अय्यूब की पुस्तक उसका 42 अध्याय और उसका 5 पद। अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय और उसका 5 पद लिखा है, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। किसके शब्द है? अय्यूब के। पहले अध्याय से 41 अध्याय तक लंबे समय के लिए बहुत कष्ट, बीमारी, दुख, तकलीफ, नुकसान, नामधराई सब सहने के बाद, दुखों के अंबार से सहने के बाद, दुखों के उस बहुत कठिन डगर को पार करने के बाद अय्यूब क्या कहता है? मुझे तो जो दुख हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि दुखों से पहले मेरे कानों ने तेरा समाचार सुना था, दुखों के बाद मेरी आंखें तुझे देखती हैं। जी हां, विश्वासियों के जीवन में कष्ट और दुख इसलिए आते हैं हम ना केवल परमेश्वर को जान सकें, परमेश्वर को हम देख सकें, परमेश्वर के कार्यों को हम देख सकें, परमेश्वर के अद्भुत बातों को हम निहार सकें, परमेश्वर की महानता को हमारी आत्मिक दृष्टि से हम देख सकें। इसलिए हमारे जीवन में कष्ट और दुख होते हैं। यही तो अय्यूब कहता है, मेरे जीवन में कष्ट और दुख हुआ, उसके पहले मेरे कानों ने तेरा समाचार सुना था, परंतु इन कष्टों और दुखों के बाद मेरी आंखें तुझे देखती। तू कितना महान है, तू कितना अच्छा है, तूने मुझे कष्ट दिया प्रभु जी, तुझे धन्यवाद। अब मैं तुझे देखता हूं, तेरी महानता, तेरी अच्छाई को मैं देखता हूं। अच्छा हुआ मेरे जीवन में दुख और तकलीफ आया, अब मैं तुझे ना केवल सुनने वाला लेकिन तुझे देखने वाला मैं बन गया। विश्वासियों के जीवन में कष्ट और दुख क्यों आते हैं, एक और बात जल्दी से बताकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 3, 4 और 5 पद जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक और कारण हम पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे रोमियो 5 अध्याय 3 पद से 5 पद। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करते, ये जानकर कि क्लेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना, खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है
उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्लेश और दुख क्यों होते हैं विश्वासी के जीवन में? क्लेश और दुख इसलिए होते हैं क्योंकि क्लेश और दुख हमारे मसीही चरित्र को उत्पन्न करते हैं। दे प्रोड्यूस द क्रिश्चियन कैरेक्टर। मसीही चरित्र को, मसीही पवित्रता को, चरित्र को वो उत्पन्न करते। पौलुस कहता है ना, हम क्लेशों में घमंड करते हैं, ये जानकर कि क्लेश से धीरज, धीरज से खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा हमें कभी लज्जित नहीं करती। ये क्लेश जो है, ये कठिनाई जो है, ये हमारे जीवन में हमें मसीही चरित्र को उत्पन्न करती है। ये क्लेशों के अनुभवों के द्वारा हम और मसीह के करीब आते हैं, मसीह के समानता में हम बढ़ते चले जाते हैं, मसीह के डीलडौल तक हम बढ़ते चले जाते हैं। किससे? कष्टों से, क्लेशों से। इसलिए पौलुस कहता है हम क्लेशों में घमंड करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए मसीही चरित्र उत्पन्न करते हैं। अजीज विश्वासियों, हम अपने आप के जीवन को जांचें परखें। पौलुस दूसरे तीमुथियुस पहला अध्याय उसके 12वें पद में कहता है ना, इस कारण मैं इन दुखों को उठाता हूं। और वहां पर रुकता नहीं, आगे क्या कहता है? मैं इन दुखों को उठाता हूं और शर्म नहीं खाता, लज्जाता नहीं हूं। दुख उठाने के लिए मुझे लज्जा नहीं आती। कितनी बड़ी बात है। अजीज विश्वासियों, हम अपने आप के जीवन को जांचें पर। हम विश्वासी हैं, क्या हम प्रभु के लिए दुख सहते हैं? हमारे जीवन में जब दुख मुसीबत आते हैं, स्मरण रखें, इसके लिए प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया। हमारे जीवन में कष्ट और दुख इसलिए आते हैं कि हम प्रभु के वचन को सीख सकें। हमारे जीवन में कष्ट और दुख इसलिए आते हैं कि हम प्रभु को और नजदीक से देख सकें, निहार सकें। हमारे जीवन में कष्ट और दुख इसलिए आते हैं कि हम मसीह के चरित्र में, मसीही चरित्र में हम और अधिक आगे बढ़ते चले जाएं। क्या हम प्रभु के लिए दुख सहते हैं? कष्ट और दुख जीवन में आएंगे, लेकिन हमें बड़े खुशी और आनंद के साथ इनको सहना है। इसलिए तो एक पुराने गीतकार ने सही में ये गीत गाया है ना, दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली वो देता है। कितना मधुर गीत है। दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली वो देता है, उसके पंखों के नीचे मैं सुरक्षित रहता हूं। मरुभूमि जगह में मन्ना मुझको देता है, मारा के पानी को मुझको मीठा करके देता है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली वो देता है, उसके पंखों के नीचे मैं सुरक्षित रहता हूं। अजीज विश्वासियों, काश पौलुस के समान हम भी कह पाए, मैं यीशु मसीह के लिए दुख सहता, लज्जाता नहीं, क्योंकि ये मेरे मसीही जीवन का एक भाग है। इसके द्वारा मैं प्रभु का वचन सीखता हूं, इसके द्वारा मैं प्रभु को निहार पाता हूं, इसके द्वारा मैं मसीही चरित्र में बढ़ता जाता हूं। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि हम दुखों को उठाएं और प्रभु के नाम की महिमा प्रशंसा कर सकें। दूसरी बात जो पौलुस यहां पर कहते हैं, दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 12वां पद लिखा है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं और लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं। यहां पर दूसरी बात, पौलुस पहली बात कहता है मैं दुख उठाता हूं, मैं दुख सहता हूं। दूसरी बात जो पौलुस कहता है वो यह है, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। क्या जानता है पौलुस? क्या जानता है? वहां पर लिखा है मैंने जिस पर विश्वास किया है मैं उसे जानता हूं। मतलब
मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं। और कैसे जानता हूं? आगे लिखा है ना, मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं और मुझे निश्चय है। आई एम कन्विंस्ड, मतलब मैं अनुभव से जानता हूं। ऐसी कोई यहां पढ़ा हुआ वहां से सुना हुआ बात नहीं। मैं अपने अनुभव से प्रभु यीशु मसीह को जानता। अजीज विश्वासियों, हम अपने आप के जीवन को जांचे पर। हम प्रभु को, हम कहते हैं हम विश्वासी हैं, हम प्रभु को जानते हैं, लेकिन हम प्रभु को कितना जानते हैं? हमारे प्रभु को हम कितना समझते हैं? भजन संहिता 34 उसके 8वें पद में हम पढ़ते हैं ना, चक्कर देखो यहोवा कैसा भला है। चक्कर देखना है, धीरे धीरे अनुभव से हमें चक्कर देखना है कि यहोवा कैसा भला है। घिटकने से हमें समझ में नहीं आएगा, तुरंत एकदम खा जाने से समझ में नहीं आएगा। चखने से, आहिस्ता आहिस्ता, हर अनुभव के साथ हम इस बात को समझते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना भला है, प्रभु कितना महान है, मेरे जीवन के लिए कितना पर्याप्त है। पौलुस कहता है, मैं जेल में हूं, मैं कष्ट उठाता हूं, मैं दुख सहता हूं, मगर एक बात है, मैं उसे जानता हूं जिस पर मैंने भरोसा किया, मैं उसे जानता हूं जिस पर मैंने विश्वास किया। मतलब मैं मेरे धन्य प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं। मैं अपने अनुभव से जानता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे प्रभु ने मुझे बुलाया है, मेरे प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया है। अब मैं अपने प्रभु को जानता हूं। अजीज विश्वासियों, हम अपने आप के जीवन को जांचे परखें, हमारे जीवन में हम प्रभु को कितना जानते हैं। कई विश्वासियों के लिए प्रभु केवल एक परचूने की दुकान वाला है। दुकान में, परचूने की दुकान या किराने की दुकान में जाकर हम क्या बोलते हैं? मुझे शक्कर देना, चावल देना, दाल देना, बोलते हैं ना, और वो दुकान वाला सब देता है। कई विश्वासियों की प्रार्थना यही है, यही बस प्रभु से मांगने के लिए विश्वासी है, प्रभु जी मुझे ये देना, नौकरी देना, घर देना, गाड़ी देना, मुझे ये देना, फलाना देना, बस। कईयों के लिए तो प्रभु रात्रि का चौकीदार है, होता है ना, रात को सोने से पहले बाइबल तकिए के नीचे रखकर सोते हैं, कहते हैं प्रभु जी बुरा सपना नहीं देना, अच्छी नींद देना, रात को संभालना, डर लगता है। प्रभु चौकीदार है क्या? प्रभु कौन है हमारे लिए? हम अपने आप को जांचें। जैसे वो गीत में हमने गाया ना, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु, प्रभु के अलावा कुछ नहीं है। मैं अपने अनुभव से, जीवन के अनुभव से, सुखों से, दुखों से, हर प्रकार के अनुभव से मैं इस बात को जानता हूं कि मैंने किस पर भरोसा रखा है, मैंने किस पर विश्वास किया है, मैं जानता हूं। अजीज विश्वासियों, हम अपने आप के जीवन को जांचे परखें। क्या हम पौलुस के समान कह सकते हैं, मैं मेरे प्रभु को अनुभव से जानता हूं, मैं अपने जीवन अनुभव से मैं जानता हूं मेरा प्रभु मेरे लिए कितना अच्छा और भला है। एक पुरानी कहानी मैंने ऐसे सुना है, कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले लंदन शहर में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ और बड़े बड़े गण्यमान्य व्यक्ति, मंत्री लोग और शाही परिवार के लोग वहां पर इकट्ठे थे। और वहां पर एक अभिनेता आया और उस अभिनेता ने उस सभा के दौरान कहा, जब उसका समय आया, उसने कहा, भाई और बहनों, आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए आज शाम को प्रस्तुत करूं? एक बुजुर्ग ने खड़े होकर कहा, साहब
आज आप हमारे लिए 23 भजन संहिता बोलकर सुनाइए। और उस समय 23 भजन इंग्लैंड देश में, लंदन शहर में सब लोग जानते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो यह अभिनेता ने अपने अंदाज में कहना शुरू किया, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं, और पूरा भजन बोलकर सुनाए। जब उसने 23 भजन बोलकर समाप्त किया, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सभागृह गूंज उठा। सब लोग ताली बजाने लगे, वाह 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 चिल्लाने लगे। क्या आवाज है, क्या अंदाज है, क्या अदाएं हैं, वाह वाह करके सब लोग शाबाशी देने लगे। जब सारा शोर थम गया, शांति बहाल हुई, जिस बुजुर्ग ने कहा था ना, वो बुजुर्ग खड़ा हुआ, उनको माइक दिया गया। उस बुजुर्ग ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। अपनी कमजोर आवाज में पूरे 23 भजन को कह दिया। और जब अंत में उन्होंने कहा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा सर्वदा वास करूंगा। शांति बनी रही, सन्नाटा छाया रहा। अभिनेता ने उस बुजुर्ग से आंखें उठाकर सारे लोगों को देखा। उस अभिनेता ने देखा, हालांकि ताली एक भी नहीं बजी, एक भी जुबान ने कुछ कहा नहीं, मगर उस अभिनेता ने देखा सारी आंखें नम थी, हर आंखों में आंसू थे। उस अभिनेता ने वापस माइक लिया और लोगों से कहा, मित्रों, मैंने भी 23 भजन बोला, इन्होंने भी 23 भजन बोला, लेकिन फर्क यह है, मैंने आपके कानों को स्पर्श किया और इन्होंने आपके दिलों को स्पर्श किया। और यह इसलिए हुआ क्योंकि मैं 23 भजन संहिता जानता हूं, मगर ये बुजुर्ग 23 भजन संहिता के अच्छे चरवाहे को जानते हैं। जी हां अजीजों, आज ना जाने कितने ऐसे विश्वासी हैं 23 भजन संहिता तो जानते हैं, लेकिन 23 भजन संहिता के अच्छे चरवाहा प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। आगे बढ़ने से पहले मेरे सुनने वालों को मैं बस ये एक महत्वपूर्ण सवाल पूछकर आगे बढ़ना चाहता हूं। क्या आप इस अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जिन्होंने आपसे प्रेम किया, आपके पापों के लिए कलवरी क्रूस पर वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, आपको पाप क्षमा देने के लिए आज आपका नाम लेकर बुलाते हैं। क्या आप व्यक्तिगत रीति से इस अच्छे चरवाहे प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं और प्रभु को अपना जीवन समर्पित किया है? यदि नहीं तो आज शाम को यह कर सकते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है, कोई दान पुण्य करने की जरूरत नहीं है। जहां आप बैठे हैं, पश्चाताप की एक प्रार्थना दिल से करना है। सच्चे विश्वास से, पूर्ण हृदय से आप कहिए, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं मानता हूं मैं पापी हूं, आप मुझे क्षमा करें, मेरे जीवन में आए, मुझे अपना संतान बना लीजिए। यदि आप पश्चाताप की ये प्रार्थना पूर्ण विश्वास के साथ करेंगे, प्रभु आपके सारे पापों को क्षमा करके अनंत जीवन का दान आपको प्रदान करेंगे। और यदि आपने प्रभु को जाना है, आप विश्वासी हैं, आप विश्वासियों से मैं पूछना चाहता हूं, आपके प्रभु को आप कितना जानते हैं? या मैं यूं कहूं, आपके प्रभु को आप कितने करीब से जानते हैं? आप केवल भजन 23 को जानने वाले हैं, या आप भजन 23 के अच्छे चरवाहे को अनुभव से जानने वालों में?
हम अपने आप को जांचे परखें, पौलुस के समान प्रभु हमारी सहायता करे, हम भी ये कह सके, मैं यीशु मसीह के लिए दुख उठाता हूं, मैं मेरे धन्य प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं, अच्छी तरह मैं पहचानता हूं, मुझे यकीन है, मुझे निश्चय है, मैं जानता हूं। और तीसरी बात, पौलुस यहां दूसरे तीमुथियुस पहला अध्याय उसके 12वें पद में कहते हैं, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं और लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। तीसरी बात जो पौलुस यहां पर कहते हैं वो यह है, मैंने अपना सर्वस्व प्रभु को सौंप दिया है। हिंदी में हालांकि वो वाक्य नहीं है, इंग्लिश में साफ तौर पर लिखा है, आई हैव एंट्रस्टेड अनटू हिम। मैंने उसको मेरा सर्वस्व, मेरा जीवन मैंने सौंप दिया है, और वो मेरी धरोहर को, मेरी उस निधि को, मेरे उस जीवन को जो मैंने प्रभु को सौंप दिया है, उस दिन तक रखवाली रक्षा कर सकता है। पौलुस क्या कह रहे हैं? तीसरी खास बात जो पौलुस कहते हैं वो यह है, मैंने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया है। केवल अभी नहीं, आज नहीं, जब प्रभु ने मुझे दमिश्क में जाने के रास्ते में दर्शन दिया और मैंने प्रभु का वो नूर, वो रोशनी जो सूरज की रोशनी से भी बढ़कर था, मैंने उस दिन प्रभु को देखा। मैंने प्रभु से पूछा, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। तब मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, तू जा, मैं तुझे बताऊंगा तुझे क्या क्या करना। उस दिन मैंने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया, और आज दिन तक मैंने सौंप कर रखा है। अजीज विश्वासियों, हम अपने आप के जीवन को जांचे परखें। हम विश्वासी हैं, क्या हमने प्रभु को कुछ सौंपा है? क्या हमने प्रभु को अपना जीवन सौंप दिया है? क्या हमने प्रभु को अपना परिवार सौंप दिया है? क्या हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने बच्चे सौंप दिया है? क्या हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना परिवार सौंप दिया है? क्या हमने प्रभु यीशु मसीह को अपनी सेवकाई सौंप दिया है? क्या हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना सर्वस्व जीवन समर्पित कर दिया है? हम अपने आप को जांचे परखें। पौलुस कहते हैं, मैंने अपना पूर्ण जीवन प्रभु को सौंप दिया है। क्यों? क्यों सौंपा है? पौलुस कहते हैं, क्योंकि प्रभु उन सारी निधि की रक्षा रखवाली कर सकते हैं। मतलब पौलुस क्या कह रहे हैं? मेरे जीवन की रक्षा कोई मनुष्य नहीं कर सकता। मेरे धन, मेरे धरोहर, मेरी निधि की रक्षा रखवाली कोई बंदा नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह मेरे धरोहर की रक्षा रखवाली कर सकते हैं। जी हां अजीज विश्वासियों, आप जो कुछ प्रभु को सौंपेंगे, यदि आप प्रभु को अपना जीवन, अपना परिवार, अपनी सेवकाई, अपना काम, अपना पूर्ण जीवन प्रभु को सौंपेंगे, प्रभु आपका सब कुछ, आपकी धरोहर को संभाल कर, सुरक्षित रखकर उसकी रक्षा रखवाली कर सकते हैं। कब तक? कब तक? वहां पर लिखा है ना, उस दिन तक। कौन दिन तक? अंतिम दिन तक। या तो मेरे जीवन के अंतिम दिन, या जिस दिन प्रभु यीशु मसीह दोबारा इन बादलों पर ना आए, उस दिन तक, अंतिम दिन तक प्रभु मेरी धरोहर की रक्षा रखवाली सुरक्षित रख सकते हैं। अजीज विश्वासियों, क्या हमने प्रभु को कुछ सौंपा है? पौलुस कहते हैं, मैंने सौंपा है। और उसका परिणाम क्या है? पौलुस कहता है, मुझे प्रतिफल मिलेगा। यही पत्री 4 अध्याय
दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसके 8 पद में पौलुस कहते हैं, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने अपने दौड़ को पूरा किया है। अब मेरे लिए एक प्रतिफल, अब मेरे लिए एक धर्म का मुकुट रखा गया है, और केवल मेरे लिए ही नहीं, उन सभी के लिए जो उनके आगमन को प्रिय जानते हैं। अजीज विश्वासियों, हम अपने आप को जांचे परखें, हमने प्रभु को क्या सौंपा है। पौलुस जेल में है, कारागृह में है, अंतिम दिनों को काट रहे हैं, लेकिन अपने जीवन अनुभव से पौलुस कहते हैं, मैंने अपना सब कुछ, मैंने अपना पूर्ण जीवन प्रभु को सौंप दिया है। उसका परिणाम प्रभु रक्षा करेंगे, प्रतिफल देंगे, अंतिम दिन तक प्रभु रक्षा रखवाली करेंगे। हमने क्या सौंपा है? मेरे नाना जी एक घटना ऐसे बताते थे, जब प्रेरित पौलुस कारागृह में थे, जेल में थे, जिस कैसर ने प्रेरित पौलुस को बहुत दुख और दर्द और यातनाएं और सितम दिया, उस कैसर का नाम था नीरो, नीरो चक्रवर्ती, नीरो कैसर। नीरो ने पौलुस को बहुत सताया, जेल में डाला। पौलुस के जेल के पास ही नीरो का एक शानदार महल नुमा मकान था। उस आलीशान महल में नीरो रहता था, लेकिन उस गंदे, अंधकार और सड़ाहट भरी जेल में पौलुस रहता था। लेकिन जेल में भी रहकर पौलुस ने यही कहा, जीना मेरे लिए मसीह, मर जाना नफा है। मैंने अपना सब कुछ प्रभु को सौंप दिया है। इसलिए क्या हुआ? वो बताते थे, 2000 साल बीत गए। आजकल आप जानते हैं किसी बंदे को जिनका नाम है मिस्टर नीरो? आज कोई नहीं, कोई भी नीरो भाई नहीं है, मिस्टर नीरो नहीं है। लेकिन नाना जी ने कहा, एक बार वो एक फलाने जगह पर गए थे सभा के लिए, और वहां पर घर में भाइयों के साथ बैठकर बात कर रहे थे, तो एकदम उस घर के मुखिया ने आवाज दी, नीरो नीरो, ऐसा करके। तो मेरे नाना जी भी उत्सुक हो गए, यार कौन बंदा है नीरो, इधर देखना है। तो वो ऐसे ऊपर की ओर देखने लगे, अभी लंबा चौड़ा नीरो कोई निकल कर आएगा कमरे से। एकदम उनके पैरों के नीचे हलचल हुई, नीरो आ गया। कौन था नीरो? कुत्ता, पालतू कुत्ता, उस समय का चक्रवर्ती सम्राट, जिस पर कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता था, जिसका नाम कोई अपनी जुबान से फालतू ले नहीं सकता था। 2000 साल के बाद उस नाम का क्या हश्र हुआ? पालतू कुत्ते का नाम हो गया नीरो। 2000 साल के बाद जिस शख्स ने अपना जीवन, अपना सेवा, अपना पूर्ण जीवन प्रभु को सौंप दिया था, उसका क्या हश्र हुआ? आज भी कितने लोग पॉल, कितने माँ बाप अपने बच्चों का नाम रखते हैं पॉल। क्यों? क्योंकि एक धन्य जीवन है, प्रेरित पौलुस का जीवन एक आदर्श जीवन है। क्यों? क्योंकि पौलुस ने अपना सब कुछ प्रभु को सौंप दिया। अजीज विश्वासियों, हम अपने आप के जीवन को जांचक परखें, हमारा समर्पण कैसा है, हमने प्रभु को क्या सौंपा है। यदि हम प्रभु को अपना जीवन सौंपेंगे, प्रभु हमें आशीष देंगे। यदि हम अपने परिवार को प्रभु को सौंपेंगे, प्रभु हमारे परिवार को आशीष देंगे। यदि हम अपनी सेवा को प्रभु को सौंपेंगे, प्रभु हमारी सेवा पर आशीष देंगे। यदि हम हमारे काम को, हमारी पढ़ाई को, हमारे कोई भी व्यवसाय को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, प्रभु उस काम पर अपनी बरकत और आशीष देंगे। पौलुस कहता है, मैंने सौंप दिया है। क्या? अपना जीवन, अपना पूर्ण जीवन। क्यों सौंपा है? क्योंकि प्रभु उसकी रक्षा रखवाली कर सकते हैं, प्रभु उसे सुरक्षित रख सकते हैं, और किसी मनुष्य के बस की बात नहीं। प्रभु उसे सुरक्षित रख सकते हैं। कब तक? अंतिम दिन तक।
जब तक मृत्यु में मेरी आंखें बंद ना हो या प्रभु यीशु मसीह ना आए, अंतिम दिन तक, उस दिन तक प्रभु मेरी धरोहर की रक्षा रखवाली कर सकते हैं। और उसका परिणाम क्या है? प्रभु एक दिन प्रतिफल देंगे। अजीज विश्वासियों, हम अपने आप के जीवन को जांचे परखें। क्या प्रेरित पौलुस के ये सद्गुण हमारे जीवन में है? क्या हम अपने अनुभव से कह पाते हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख सहता हूं? क्या हम ये कह सकते हैं? क्या हम प्रेरित पौलुस के समान कह सकते हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के अनुभव से जानता हूं? यहां पढ़ा हुआ वहां सुना हुआ बातें नहीं, मैं अपने जीवन के अनुभव से, अपने जीवन से मैं उसे जानता हूं जिस पर मैंने विश्वास किया है। मुझे निश्चय है, मुझे यकीन है, मैं जानता हूं। क्या हम प्रेरित पौलुस के समान कह सकते हैं, मैंने अपना पूर्ण जीवन, मैंने अपना संपूर्ण व्यक्तित्व इस प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया है? हम अपने आप को जांचे परखें। प्रभु मेरी और आपकी सहायता और मदद करे। इस 21वीं शताब्दी में प्रेरित पौलुस के सद्गुणों को हमारे जीवन में अपनाकर प्रभु के नाम की महिमा के लिए एक समर्पित मसीही जीवन हम बिता सकें। हम भी अपने जीवन अनुभव से कह सकें, मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख सहने के लिए तैयार हूं, मैं प्रभु के लिए दुख उठाता हूं, मैं प्रभु को जानता हूं। अपने अनुभव से, अपने जीवन अनुभव से मैं प्रभु को जानता हूं, और मैंने अपना जीवन, मैंने अपना परिवार, मैंने अपना काम, मैंने अपनी सेवा, मैंने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु को सौंप दिया है, क्योंकि मुझे यकीन है प्रभु यीशु मसीह ही केवल मेरे जिंदगी की धरोहर को, मेरे जीवन की निधि को अंतिम दिन तक संभाल कर सुरक्षित रख सकते हैं। प्रभु सहायता करे, प्रभु इन विचारों को आशीष करके हमें दे। प्रेरित पौलुस के समान हमारा भी समर्पण हो, हम प्रभु के लिए दुख उठाएं, प्रभु को और करीबी से जाने, अपना पूर्ण व्यक्तित्व, अपना संपूर्ण सर्वस्व जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करके प्रभु की महिमा के लिए एक समर्पित मसीही जीवन, एक विजयी मसीही जीवन बिताने के लिए प्रभु मेरी और आपकी सहायता और मदद करे। प्रभु इन विचारों को आशीष करके हमें दे। परमेश्वर के नाम की